Hello, friends, a warm welcome. And in this series, where we are trying to understand and decipher what it takes to understand a newspaper. Newspaper सिर्फ एक current affairs का जरिया नहीं है. It showcases and enhances your personality. It is a long-term process. It is more smarter than a graduation exam. It is more smarter than a common book. It is more smarter than a leisure reading. तो गोल ये है कि प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के लिए जो आयाम चाहिए, जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स चाहिए, वो हम कैसे इनकलकेट करें. वी आर नॉट सेइंग दैट बस इसको सुन लो इसी में से पेपर आ गया, बट इट इज़ फॉर दैट वेरी श्योर दैट इफ यू लर्न टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली, देन ए प्रोसेस स्टार्ट्स. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ये पहला कदम है, और इस कदम के आगे बढ़ने के साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी क्लैरिटी भी बढ़ती जाती है. सो वी रन डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड कैंडिडेट्स, सो दैट वो राइट डायरेक्शन में, राइट अप्रोच से सक्सेस की तरफ जाएं. So please do like, share and subscribe, and also get back for any comment and feedback. So when we start understanding कि आज पेपर में, आज के दिन में हुआ क्या क्या है, तो पहला एक न्यूज आइटम आता है जिसमें हम देखते हैं कि कूलिंग ऑफ क्लॉज की बात होती है. कूलिंग ऑफ क्लॉज, वी कैन लिंक कूलिंग ऑफ क्लॉज विद एथिक्स. कूलिंग ऑफ क्लॉज मीन्स गवर्नेंस का टूल है. कूलिंग ऑफ क्लॉज मीन्स इट इज लिंक्ड विद transparency. Cooling off clause means it is linked with better governance practices. That is what you can say cooling off clause. So in case of BCCI, they are requesting that sir please give us waive this so that clause अगर stringent है, जो कि बात करता है कि भाई आपको एक ब्रेक चाहिए आफ्टर एवरी 3 years tenure, देन BCCI is saying कि इससे हमारा नुकसान है. We want continuity, we want experience. So ये गवर्नेंस इशू के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं. Secondly, an example is here where Punjab Chief Minister says that हम full support देंगे अग्निपथ रैलीज को. That is after आर्मी वार्निंग. तो कीवर्ड यहाँ पर क्या है? आर्मी ने वार्निंग दी. ऐसी नौबत क्यों आई? आर्मी को वार्निंग क्यों देनी पड़ी? That means army is not warning in a threatening manner. Army is not warning in a negative manner, but it is here a concern, you can say. That is what is there. Another important point that our Prime Minister has left for SCO meeting, and Russia confirms that it will be meeting with India, or Indian counterpart will be meeting Russian President Vladimir Putin. So this is particularly important because India will be presiding United Nations Security Council in December 2022, and also in 2023 India will be leading the SCO chair apart from G20. So you have to understand in which international forums, which international institutions India is going to work upon with. So nothing comes without practice, nothing comes without clarity, but always there is a way to inculcate, and also continuous grooming and guidance is required. Otherwise, like the way we prepare for class 12 tuition, like the way we prepare for IIT PMT, or we prepare for beautician course, civil services ऐसा नहीं है. कोई कहता है 3 महीने में हम पूरा कोर्स पूरा करा देंगे, कोई कहता है हम 6 महीने में करा देंगे. अरे भाई बहुत सा आप करा ही दोगे तो आपको खुद को क्या आता है? तो आई हैड स्टूडेंट्स, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी रहे हैं जिन्होंने पूरे पूरे साल मॉक पेपर किए हैं, पूरे पूरे साल प्रैक्टिस पेपर्स भी किए हैं, फिर भी पीटी नहीं निकला. ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने स्मार्टली थोड़ा काम किया है, फिर भी चीजें हुई हैं. बट इट टेक्स टाइम. इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ फिनोमिना. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट इज सेइंग कि 6,000 MCQ. बात आप 6,000 कर लो चाहे आप 60,000 कर लो, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है. आपके माइंड का पैटर्न है, उसको समझना है. Coming again, like the Surapur model, there is Himachal Pradesh NYPD model. So NYPD model हिमाचल प्रदेश का क्या कहता है? Predictive policing. New model of predictive policing, whereby police is able to predict किस प्रकार के क्राइम हो रहे हैं, and then accordingly it is taking action. So every week the top brass of the police is going to look at the graphs of crimes under different heads कि किस वीक में क्या क्या हुआ, और एक ऐसा क्राइम जिसने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, और उसको रोकने के लिए स्पेशल रेलिवेंट स्टेप्स उठाए जाएंगे. Along with the public works department, it is being implemented in Himachal Pradesh. Again, it is a kind of an example where you can say that data intensive approach is taken. That is why data intensive approach or smart policing is coming into picture. That is why every state every state requires a model according to its own needs and according to own circumstances. For example, ये जो predictive policing
मॉडल है, ये इंस्पायर हुआ है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से, एंड इट इज हेडेड बाय, इन 1990s it was headed by a legendary some William Breton started it, but then that is not important here. Here it is important that India is adopting it, or the state is adopting it according to needs and conditions. सपोज आप किसी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं, और आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, सपोज फॉर एग्जांपल इन द सिविक डिपार्टमेंट, जो ग्रास रूट एम्प्लॉयज़ हैं, अगर क्या आप उनके अटेंडेंस को विदहोल्ड करेंगे, आई मीन टू से क्या आप उनके सैलरीज को विदहोल्ड करेंगे अगर वो अटेंडेंस स्मार्ट ऐप से नहीं करते हैं? तो क्या आप उनके अटेंडेंस को, आप उस अगर वो अटेंडेंस मार्क नहीं कर पाते हैं, आर यू गोइंग टू विद होल्ड देयर सैलरी? तो दिल्ली हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड एमसीडी कि सैलरी जो पैरामेडिकल स्टाफ की है, जो हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, वो विदहोल्ड ना की जाए, ऑन द कंडीशन कि भाई उन्होंने अपनी अटेंडेंस एमसीडी स्मार्ट ऐप के ऊपर मार्क नहीं की है। सैलरी उनको मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने सैलरी अपनी अगर स्मार्ट ऐप पे मार्क नहीं कर पाए, देयर मे बी अदर रीजन, बट देन इट शोकेसेस कि रूल इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, बट इट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट द ट्रस्ट विद द एम्प्लॉइज। मूविंग फर्दर, इंडिया एंड मैक्सिको। सो ओपन योर एटलस और गूगल कि मैक्सिको आखिर है कहां पर, हाउ फार अवे इट इज फ्रॉम इंडिया। इंडिया मैक्सिको रिलेशंस में अगर बात करें हम, तो क्या रिलेशंस हैं? क्या हेल्थ सेक्टर में इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग टू मैक्सिको? क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग टू मैक्सिको? और व्हाट इज द रोल ऑफ बोथ द कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स? क्या ऐसी कुछ ब्रांड्स हैं, क्या ऐसे कुछ बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हैं जहां पर एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कमिंग अप टुगेदर, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, और फॉर एग्जांपल export areas, or for example fertilizers and so on. So this is very important to understand. So they are at the opposite sides of the globe as it is written, but then India is the seventh destination of Mexican exports, seventh destination, and 13th origin of import. So most importantly, अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया और मैक्सिको के रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, म्यूचुअल अवेयरनेस चाहिए। India Mexico bilateral trade is equally important or more significant than the commercial exchange with India, Sri Lanka, India, Canada, India, Israel, India, Spain, or so on. That is why India is an attractive destination. Diversification of sources is required, and we can say India Mexico relations can move forward. And also, it is an example how India can have better relations with Latin America. These ideas are related with General Studies Paper 2 International Relations. Or maybe if you want to go to a foreign service, you may have some idea into it. Moving further, in terms of international relations, General Studies Paper 2 IR, when we say that what India and France relations signify, that relationship is signified by Indo-Pacific and rule-based international order. This word must come in your answer. Implementation of a joint roadmap of blue economy and ocean governance. Blue economy and ocean governance, that was adopted in February 2022. So in PT also it can come up that what is ocean governance and what is blue economy, ये किसके साथ जुड़े हुए हैं. And India, France, Australia trilateral mechanism. ये जो आपके 4 ideas or 5 ideas what I'm discussing, they are the key benchmark for initiating India-France relationship. Similarly, if I talk about anthropology, if I talk about general studies paper 1, then center is according status of scheduled tribe to Himachal's Hatti community. Chhattisgarh ki Birijiya, Tamil Nadu's Narikuruvar, they are also being part of the scheduled tribe list. So this is very very important. Transgiri region of Sirmaur district in Himachal, जहाँ से हट्टी कम्युनिटी है, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया प्रपोजल, एंड इट हैज बीन मेड पार्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब. सो इट इज गोइंग टू बेनिफिट अराउंड 1.6 लाख पीपल ऑफ द कम्युनिटी. इसी तरह से ब्रिजिया कम्युनिटी, एज आई सेड, एंड सिमिलरली नारी खोरावर community of Tamil Nadu also, it is part of scheduled tribe. So you have to look in the constitution which article are actually there that talks about inclusion of a community to make a ST. Similarly in the prelims exam ये आ सकता है कि वो करती क्या है, कोई खास बात है, because for example they are known for small products that they are selling and they are preparing. Similarly हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर के ऊपर हट्टीज जो हैं, बहुत टाइम से उनको एसटी स्टेटस की डिमांड थी, जो कि अब पूरी हो गई है. We have been discussing in General Studies Paper 2 about the hijab issue.
what is going on in the Supreme Court. So continuing this argument further, if someone says or if the appellant says that अगर कर्नाटका हिजाब रूल इज बीइंग अप्लाइड तो इसका मतलब ये होगा कि ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज अपने बच्चों को स्कूल से निकालकर मदरसा भेज देंगी. तो सुप्रीम कोर्ट इज आस्किंग दैट मीन्स दे आर नॉट वेयरिंग हिजाब ऑन देयर ओन, दे आर बीइंग फोर्स्ड बाय देयर पेरेंट्स. That means they are not being allowed to take their own decision. That means conservative family system is actually impacting them. So that is why it is very much important that the student must take their own decisions up after a certain age group or so on, but not in every area. Secondly, appellant is saying कि भाई आप हिजाब को हटाकर आप ये फोर्स करके देयर मस्ट बी ए यूनिफॉर्म ड्रेस कोड इन स्कूल, आप जो है होमोजेनिटी इन्फोर्स कर रहे हो. सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग इट इज नॉट द केस. देन इट इज ऑल्सो आर्ग्यूड दैट आप डिसिप्लिन लेके आ रहे हो, तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ऑल्सो इज देयर इन डिसिप्लिन. यू कैनॉट से कि आप सभी कम्युनिटीज को एक्सेस टू एजुकेशन देंगे तो ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होगी, वो भी ट्रू है, लेकिन यहाँ पर the case is not that they must not be allowed to have education. So these are the ideas which helps you to debate and understand, and you can link it with NCERT polity, and further ideas can be uh, tagged, or you can say elaborated. That is what we do in different courses that we conduct for students in order to prepare them to become an officer for the civil services. अगर मैं आपसे बोलूं इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से बोल रहा है कि हेट स्पीच के लिए कोई कानून ही नहीं है, भाई मैं किस कानून के अंदर उनको रोकूं? हेट स्पीच के रोकने का मेरे पास कोई बंदोबस्त नहीं है एक्सेप्ट इंडियन पीनल कोड एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1991. हेट स्पीच जो है डिफाइंड ही नहीं की गई है किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ में, तो मैं क्या करूं भाई? देन we have to understand that the hate speech is creating disharmony among different societies, different sections of society, and it must be curbed at all costs. So Supreme Court is saying that it has been dealt in the 2014 case प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे पिटिशनर ने कहा था कि स्टेट शुड टेक प्रीएम्प्टरी एक्शन, यानी पहले कोई एक्शन ले होने से पहले, अगेंस्ट दोज हु आर इंडल्जिंग इन डिसहार्मनी और हेट स्पीच. सो सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑब्जर्व किया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ वुड सॉल्व द प्रॉब्लम टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बट देन ऐसा नहीं हुआ. अल्टीमेटली दिस इशू वाज सेंट ओवर टू द लॉ कमीशन टू एग्जामिन कि क्या प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए हेट स्पीच का, और रिकमेंडेशंस पार्लियामेंट को दी जानी चाहिए, और पार्लियामेंट फिर कोई ऐसा कानून बनाए जिससे इलेक्शन कमीशन के हाथ स्ट्रांग हो कि हेट स्पीच क्या है और कैसे रोकी जा सके. इस बारे में आपके क्या व्यू है? डू राइट इन योर नोट्स एंड ऑल्सो राइट इन द कमेंट बॉक्स. When I say discrimination, so it is a very important concept, not only of sociology optional, psychology optional, and even in anthropology and even in public administration. लेकिन आपको एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. You must know a structure that the joblessness is there for women more than men because of discrimination, both in urban and rural area. You must use the key words in writing general studies, paper 3 answers in economy also. For example, labor force participation. यानी कि proportion of working age population that engages actively in the labor market. That is called labor force participation. So female का labor force participation कम है. Regular self employment भी कम है, यानी कि उनकी मीन इनकम भी कम ही होगी. एंड इवन इफ यू गो टू डिफरेंट कम्युनिटीज विद इन द वुमेन, देन वो भी कम ही हो जाएगा. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. बट देन आर साइड बाय साइड, फॉर एग्जांपल दिस आर्टिकल इज नॉट टॉकिंग अबाउट कि इसका सॉल्यूशन क्या है. डिस्क्रिमिनेशन इन द लेबर मार्केट इज देयर व्हेन पीपल विद आइडेंटिकल कैपेबिलिटीज दे आर ट्रीटेड डिफरेंटली बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिटी और सोशल बैकग्राउंड्स. तो इक्वल फुटिंग पे कैसे लड़ेंगे फिर सब? यानी इसके लिए आप बोलेंगे कि लेजिस्लेशन को इक्वली प्रमोट किया जाना चाहिए, सोशल अवेयरनेस की जानी चाहिए, साथ साथ में इसके लोकल बॉडीज, लोकल रिप्रेजेंटेटिव को भी रोल होना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का भी रोल होना चाहिए. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू ब्रिंग फ्रॉम योर ओन इनोवेटिव माइंडसेट एंड आइडिया, so that you bring the solutions to the discrimination rather than just mugging up ये प्रॉब्लम है, रिपोर्ट ने ये कहा. पीटी में तो इतना आएगा, ऑक्सफैम या फिर पीटी में आएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, बट देन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, दैट व्हाट वी आर टेकिंग. अब हम एक और जनरल स्टडीज पेपर 2 की बात करें जिसके अंदर ईडब्ल्यूएस कोटा
what is being argued in the constitution, in the Supreme Court, and what is given in the constitution. So the 5 bench constitution is discussing कि EWS कोटा क्या सिर्फ सोल क्राइटेरिया फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर फैमिली के किया गया है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा फॉर द फॉरवर्ड क्लासेस. एक ग्रुप का कहना है कि ईडब्ल्यूएस कोटा इज कंप्लीटली अनवारंटेड, चाहिए ही नहीं, इलीगल है, आर्बिट्ररी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो ओवर रूल कर रहा है इंदिरा स्वानी या फिर मंडल वर्डिक्ट को, जिसने स्पेसिफिकली ये कहा था कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता. बट व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग, प्लीज लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली, कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज फ्रेम करती है इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे अगर ग्राउंड है तो वो बेनिफिट करता है टारगेटेड ग्रुप को या टारगेटेड पीपल को. एंड इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक परमिसिबल ग्राउंड है, वो एक रीजनेबल बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो प्रोस्क्राइब नहीं किया गया है, प्रोस्क्राइब, बैन नहीं है वो. अगर हम बात करें इससे कि हाउ सुप्रीम कोर्ट हैज इवॉल्व्ड देयर वर्डिक्ट्स विद टाइम, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था चंपकम दुरै राजन केस के अंदर, जिसकी वजह से फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था. सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में मद्रास हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को, जो कि जिसके द्वारा उसने गवर्नमेंट का जो 1927 का एक ऑर्डर था मद्रास प्रेसिडेंसी का, जिसने कोटा प्रोवाइड किया था स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कास्ट के बेसिस के ऊपर, उसको नलीफाई कर दिया था. इसीलिए सेंटर को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लेके आना पड़ा था. पहले प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आते थे कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, पेयर बना दो, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, साल गलत दे दिया, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, उसका लॉजिक गलत दे दिया. लेकिन अब इवोल्यूशन का टाइम है. दैट इज वाई फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट क्यों आया. सो मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था टू ब्रिंग बैक द कोटा सिस्टम इन स्टेट एंड इंस्टीट्यूशंस कोटा पॉलिसी, उसकी वजह से आया और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट भी आया. तो आपको लॉजिक भी समझना पड़ेगा एंड यू मस्ट नो द कॉज ऑल्सो. When we talk about essay or ethics or even interview, जब आपसे कोई पूछता है कि हिंदी को कैसे प्रमोट किया जाए, आखिर हिंदी क्या है, हिंदी राजभाषा है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, आपका उत्तर क्या होगा. भारत में हिंदी का रोल क्या है. कर्नाटका गवर्नमेंट इज गोइंग टू मेक कन्नड़ा मैंडेटरी, but the government of India says that every regional language of the country is a national language. Please mind it, every regional language of a state or in the India is a national language, because we have so many national languages जो कि शेड्यूल में भी दी गई हैं, शेड्यूल 8 में दी गई हैं. और आपकी जो इंग्लिश और हिंदी है वो राजभाषाएं, they are you can say they are not national, they are provided in the constitution for governance purposes. In terms of general studies paper 1 and also in terms of understanding health as a component of general studies paper 3 economy, we have to understand health. Health is a very important social infrastructure. So you have to remember and you have to know the key indicators rather than doing everything, and you must know कि उसको हम आपस में juxtapose कैसे करें. मैं उसको अपने आंसर में, मैं उसको अपने essay में, मैं उसको अपने thought process में कैसे लाऊं, मैं उसको स्कीम के साथ कैसे जोड़ूं. तो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी 2018 से अगर आप 2015 को पीछे देखें तो वो हेल्थ एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी घटा है. पीटी का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है. गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी 2015 के मुकाबले आप अगर देखेंगे 2015 में 1.13 था, तो वो बढ़कर 2018-19 में 1.28 हुआ है. वो बढ़ता चला गया है, यानी कि 2017-18 में ज्यादा था लेकिन अब वो फिर कम हुआ. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, आउट ऑफ पॉकेट यानी अपनी जेब से किया गया खर्चा टोटल एक्सपेंडिचर का कम हुआ है. दैट इज अ ग्रेट बूस्टर. सिमिलरली गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर भी फ्रॉम 2014-15 अगर हम आज की बात करें तो वो बढ़ा है. दैट्स अ गुड साइन. सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर इज अ की फ्रेज. सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, उसके बोलते ही आपके माइंड में गवर्नमेंट इंश्योरेंस, गवर्नमेंट स्कीम्स आने चाहिए, गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स आने चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, और स्टेट स्कीम्स भी आ जानी चाहिए. वो जो है टाइम के साथ बढ़ी है. तो सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर जो आपका जनरल स्टडीज पेपर 1 में, जनरल स्टडीज पेपर 2 में, जनरल स्टडीज पेपर 3 में एंड इवन जनरल स्टडीज पेपर 4 दैट इज एथिक्स के अंदर भी उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल आ जाता है.
तो ये आपको यहाँ से की पॉइंट निकालना है, जो आपको ये देखना है कि फ्यूचर में कैसे हम और ज्यादा वेलफेयर मेजर्स लाकर हम राइट अमाउंट का एक्सपेंडिचर कर सकते हैं. सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्पेशली इन द कोविड टाइम्स एंड सो ऑन, इंडिया का जो गोल है is to become आत्मनिर्भर, that is self reliance. Without without health infrastructure we cannot think of becoming a developed nation or even a 5 trillion or 10 trillion company. Communism is an ideology in which there is an important role of state, and also there is a drive towards nationalization of resources, and also it is discouraging capitalism under all ways, and it favors peasants also and workers class also. That is why Maharashtra, there is a very famous leader from Maharashtra, Lok Shahir Anna Bhau Sathe. Lok Shahir Anna Bhau Sathe played a very important role during the freedom struggle along with Dr. Bhimrao Ambedkar in promoting the workers' rights. For example, Matunga labor camp and later on Chavdar Lake Satyagraha. We will discuss separately that what is Satyagraha and how that is. So Chavdar Lake Satyagraha at Mahad, very famous Satyagraha led by Dr. Bhimrao Ambedkar Sahib, that where Sathe played very important role. So Sathe wrote, his writings become very, very awesome in order to promote ideas of Dalits and also workers. He also played an important role in the Progressive Writers Association. Progressive writers यानी जो modern ideas को लाएंगे, thought process को लाएंगे. अगर मैं रशियन थिंकर्स की, रशियन लीडर्स की बात करूं तो एंटोन चेकोव, मैक्सिम गोर्की, लियो टॉल्स्टॉय, इवान तुर्गेनेव, ये वो कुछ लीडर्स हैं. और यहाँ तक कि जो अपने अन्ना भाऊ साहब हैं उनको मैक्सिम गोर्की ऑफ महाराष्ट्र भी कहा गया है. तो ये वो लीडर्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए. ये वो लीडर्स हैं जिनके बारे में समाज को पता होना चाहिए, जिनकी मास अपील है, जिनकी राइटिंग्स को मराठी, रशियन, बहुत सारी भाषाओं में, थिएटर में, नाटक में और उन चीज़ों में जो है बंगाली भाषा में भी उनको ट्रांसलेट किया गया है. साठे ने अपना बहुत ही फेमस नॉवल, साठे साहब ने फकीरा, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को अर्पित किया था. एंड ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द की मेंबर्स ऑफ फॉर्मिंग इप्टा, इंडियन पीपल थिएटर्स एसोसिएशन. So that is how Russian connection is there with Sate, and his statue is being inaugurated at in Moscow, I should say. That is why we are discussing about him. तो आपको आइडिया लगना चाहिए कि ऐसे करके स्टोरीज क्रिएट होती हैं. ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये किसी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, ये किसी जनरल कोचिंग के नोट्स में नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से हमें आइडिया लेना है कि कैसे चीज़ों को हमें करना है. अगर मैं आपसे कहूं एथिक्स में आपके पास स्टेटमेंट आता है, इन पॉलिटिक्स नथिंग हैपेंस बाय एक्सीडेंट. इन पॉलिटिक्स नथिंग हैपेंस बाय एक्सीडेंट. इफ इट हैपेंस यू कैन बेट इट वाज प्लान्ड दैट वे. अब इस स्टेटमेंट को आपको अपने आप इंटरप्रेट करना है, आपको अपने आप लिखना है. तो आप क्या लिखेंगे? सोचना शुरू कीजिए. अचानक से आप कभी नहीं सोच पाएंगे, तो आप क्या लिखेंगे? जो आपके थॉट्स आएंगे वही आपका फर्स्ट बेबी स्टेप है. अपने थॉट्स को क्रिएट कीजिए, अपने थॉट्स को जेन्युइनली समझिए कि इन पॉलिटिक्स नथिंग हैपेंस बाय एक्सीडेंट. इफ इट हैपेंस यू कैन बेट इट वाज प्लान्ड दैट वे. यू कैन बेट, ऐसा जरूरी नहीं है, आप ऐसा बेट कर सकते हैं, लेकिन दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ you know when large number of legislators from one party they directly jump over ship to the other party. तो ये कैसे रोका जाए? क्या वाकई बीजेपी को भारत में अपोजिशन मुक्त भारत चाहिए? क्या अपोजिशन की कोई फोकस क्लैरिटी नहीं है? क्या भारत में जो अपोजिशन पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, दे आर नॉट हैविंग ग्रेट लीडरशिप? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, तभी हम इसको जान पाएंगे. As per General Studies Paper 3 and also for Economics Optional, and I should say Accountancy and Commerce, from the perspective of Accountancy and Commerce, I am going to discuss a very, very important topic, labor reforms. ये ईपीएफओ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हम कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़नी बहुत जरूरी है. एम्प्लॉयमेंट तो जब बढ़ेगी ना जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. जॉबलेस, ग्रोथलेस जॉब्स नहीं हो सकती हैं. प्लीज माइंड माय वर्ड, जॉब ग्रोथलेस जॉब्स
ग्रोथ लेस जॉब्स नहीं हो सकती हैं। जॉब्स होंगी तो ग्रोथ अपने आप होगी। तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी अगर ज्यादा होगी तो ग्रोथ भी ज्यादा होगी। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो है वो जब बढ़ेगी जब प्रोडक्टिविटी उसके साथ लिंक होगी। सो दैट इज वाई इवन इन द कोविड टाइम्स एंड आफ्टर दैट एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या बढ़ी? इतनी नहीं बढ़ी। ऐसा क्यों हुआ? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या हाई हुआ? नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? तो ये लिखा जाता रहेगा, समझते रहेंगे। पहली बात आपको प्रीलिम्स के एंगल से जानना है कि लेबर कम्स अंडर कंकरेंट लिस्ट, इट कम्स अंडर कंकरेंट लिस्ट। If you see back, then there were so many 50-55 laws were there, यूनियन लेबर लॉज वर देयर। तो लेबर मिनिस्ट्री ने उसको कट डाउन करके कम कर दिया, उनकी डेफिनेशंस को जो डिफरेंट डिफरेंट थी, उनके इंटरप्रिटेशन जो डिफरेंट डिफरेंट थे, उनको कंसिस्टेंट बनाया। इससे लेबर मार्केट ऑर्गेनाइज होगा। जब तक वो रिजिड रहेगा तब तक डिजायर्ड इम्प्लीकेशंस नहीं आने वाले। सो दैट इज वाई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। यानी वो किससे जुड़ा हुआ है, आप कितने लोगों को हटा सकते हैं, आप कब हटा सकते हैं। लेबर इंस्पेक्टर से आप, इंस्पेक्टर राज जिसको हम कहते हैं, क्या वो आएगा तो आपको तंग करेगा? तो लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल यानी कि कोई भी एंटरप्राइज है, उसकी स्टार्टिंग, उसकी फंक्शनिंग और उसका एग्जिट। जब तक वो ठीक से नहीं होगा तब तक आप समझ लीजिए कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्टिविटी भी ठीक से नहीं चलेगी। तो नॉन वेज ट्रांजेक्शन है ये। यानी किसी भी वर्कर का निकाला जाना, उसका स्किल देना, उसको छोड़ना, तनख्वाह ना मिलना, ये नॉन वेज ट्रांजेक्शन है। अब समझ लीजिए किसी ने किसी को हायर किया, बहुत सारे लोगों को, उस टाइम प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक से प्रोडक्शन डाउन चला गया, फिर उसको हटाना पड़े और हटा ही ना सकता अकॉर्डिंग टू द लॉ, फिर वो क्या करेगा? तो दे विल लुक फॉर सम अदर वेज। इसीलिए रिफॉर्म्स आए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, ये सारे स्टेट्स ने अपने अपने हिसाब से लेबर लॉस को अनइंटेंगल किया। उसको हम कहते हैं लेबर मार्केट रिफॉर्म। तो यानी कि फ्लेक्सिबल लेबर लॉज होने चाहिए जी, जैसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये हमेशा जरूरी नहीं है कि देयर विल बी स्टैट्यूटरी चेंजेस आल्सो। फ्लेक्सिबल ऑर्डर रेगुलेशन भी तो हो सकते हैं। यानी कि एग्जीक्यूटिव, यानी कि ईपीएफओ ऑफिसर हो गया, लेबर ऑफिसर हो गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, या बाकी ऑफिसर्स हो गए, वो फ्लेक्सिबल रेगुलेशंस और ऑर्डर भी तो दे सकते हैं। यानी कि हार्मनी ज्यादा होगी तो कंप्लायंस कॉस्ट भी कम होगी। यानी कि कोरिलेशन चीजों का बढ़ता जाएगा। बट इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? इसके लिए हमें चाहिए, हमारे पास डेटा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डेटा में बायसनेस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डेटा। उससे हमारा सैंपल बनता है। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर को हमें देखना पड़ेगा। इसका मतलब सर्विसेज जो है वो अगर स्टेट लेवल शॉप्स उनको कवर कर रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कवर कर रहे हैं, तो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ही सिर्फ रह जाएगा, क्योंकि स्टेट के लॉज अगर सेंटर के लॉज से मैच नहीं कर रहे हैं तो देयर विल बी टैंगलिंग। कोविड 19 पैंडेमिक या ऐसी किसी भी वजह से जो भी शॉक्स हुए हैं, उस शॉक को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। यानी लेबर इंटेंसिटी जो प्रोडक्शन की है वो रिलेटिव प्राइसेस से प्रोपोर्शनली लिंक्ड है। अब उसके साथ साथ आप सोचिए सब्सिडीज भी आएंगी, यानी टैक्स एब्जेंशन आएंगी, उसका भी फर्क पड़ेगा। टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हो उसका भी फर्क पड़ेगा। तो यानी कि ये सारी बातें जब मैं मिलाता हूं, तो क्या मैं एक कंपनी जब मैं स्टार्ट करूंगा, एक एस्टेब्लिशमेंट में स्टार्ट करूंगा, तो मैं क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट लेबर को ही रख लूं? क्यों ना मैं फ्लेक्सिबल लेबर लॉस को इस तरह से यूज करूं कि मुझे जो है मेरे प्रोडक्शन भी बढ़े और मैं उनका भी कुछ भला कर सकूं? तो दीज आर द इश्यूज। जो रिकमेंडेशंस दिया था सेकंड लेबर कमीशन ने और जो और रिपोर्ट्स आई, उसका यही कहना था कि भाई सारे के सारे जो लॉज हैं उनको आपने 4 कोड्स में कर दिया। फर्स्ट, कोड्स ऑन वेजेस, सेफ्टी एंड हेल्थ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी। आई रिपीट, वेजेस, सेफ्टी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी। अब इनको जब तक आप स्ट्रीमलाइन तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। यानी कि सारे के सारे रूल्स को सभी स्टेट जब अप्लाई करेंगे देन डेफिनेटली देयर विल बी अ पॉजिटिव आउटकम इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ लेबर पार्टिसिपेशन, इन टर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड सो ऑन। दैट इज व्हाई labor market reforms will have an equal role of states.
Without states' participation, labor reforms cannot be undertaken. So the four codes, the four labor codes which I have just spoken, क्योंकि हमने कल ही बात की थी, गुजरात में नहीं, गुजरात में चला गया वेदांता एक्सॉन, महाराष्ट्र में नहीं किया, बंगाल की तो बात ही छोड़िए। मारुति ने थोड़े टाइम पहले अनाउंस किया दैट इन हरियाणा इन खरखौदा दे आर गोइंग टू हैव अनदर प्लांट। सो ये जो बिलो द बेल्ट चीजें हैं ये इसी के कारण आती हैं, आपको ऐसा देखना पड़ेगा, आपको ऐसा समझना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि कोई भी जो प्राइवेट सेक्टर है दैट इट इज गोइंग टू वाई हाउ एंड वाई इट इज गोइंग टू इन्वेस्ट, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम खत्म होनी चाहिए। दैट मीन्स बैड लोन्स कम से कम होने चाहिए। दैट मीन्स ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स जो प्रोडक्टिव लीवरेज है वो ज्यादा होनी चाहिए। सो सेंटर इफ इट इज पुशिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स देन प्राइवेट सेक्टर विल बी कमिंग ऑन बोर्ड with smartness only if the conditions and everything is clear. That is what we can say with General Studies paper 2. If I talk about India-Bangladesh relations in General Studies paper 2, so please look in the map. From the prelims perspective, if I am saying about Kushiara River, which is a branch of Barak River on the border between Assam's Karimganj and Bangladesh Sylhet district. So the agreement से होगा क्या? It will be operationalizing Rahimpur Canal. But मैं बात करता हूँ तीस्ता रिवर की, फरक्का। देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरनेशनल फरक्का कमेटी, एक तरीके की नॉन गवर्नमेंटल बॉडी जो बांग्लादेश की वेल विशर्स की है, विच हैव बीन आस्किंग दैट मोर वाटर शुड कम ओवर टू बांग्लादेश सो दैट डेजर्टिफिकेशन शुड नॉट टेक प्लेस, सो दैट वहां के लैंड को पानी मिले। बट द क्वेश्चन अराइजेज, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी कब? क्योंकि फरक्का की जब हम बात करते हैं तो उसकी शुरुआत, उसकी बातचीत 1962 से भी पहले हुई है। इट इज प्रिसीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। 1975 में फरक्का बैरेज जो गंगा रिवर गंगा के ऊपर है जो है, फरक्का बैरेज को कमीशन किया गया था। लेकिन उसके बाद से जो है उस पर कोई भी प्रॉपर आज तक हमारा वो नहीं हुआ है कि हाउ मच वाटर शुड बी लेफ्ट टू गो टू बांग्लादेश। सो द क्वेश्चन अराइजेस, शेयर्ड वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। उसके लिए अगर हम हिमालय की जो ग्लेशियर फेड रिवर्स है जैसे तीस्ता, विच इज द बैकबोन एंड लाइफलाइन ऑफ सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग एंड नियर बाई नॉर्थ बंगाल रीजन्स, उसके अंदर अब इतना पानी नहीं है कि आप कंप्लीटली छोड़ दें, because paddy is being cultivated and other agriculture activities are being also undertaken apart from manufacturing, कि वो बांग्लादेश की जस्टिफाई पूरा कर देगा। So there is a political angle also taken up by the state politics, West Bengal, and similarly second angle is of the climate change. सो अगर हम तीस्ता को पावर के लिए सिक्किम में अगर आप देखेंगे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स को अगर हम लगाते जाएंगे तो पानी तो जाएगा ही नहीं, बिकॉज दे आर रन ऑफ द रिवर प्लांट्स जो वाटर कायदे से रोकना नहीं चाहिए लेकिन रोकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज करते हैं पीक आवर्स के ऊपर और फिर पानी को छोड़ देते हैं। सो दैट इज वाई इट इज ए वेरी वेरी डिबेटेबल एंड ए डिलेमेटिक सिचुएशन। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लंबे एक्सट्रीम समर्स वी आर विटनेसिंग, सो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ थिंकिंग फॉर इट कि डैम्स इतने ना बनाए जाएं, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व किया जाए, हार्मोनियस तरीके से शेयर किया जाए। दैट इज व्हाट वी कैन से। दिस थीम कैन बी यूज्ड बोथ फॉर जनरल स्टडीज पेपर 2, 3 एंड आल्सो फॉर एसे। इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, जनरल स्टडीज पेपर 1 जब हम बात करते हैं कि क्या था हमारा नेचर ऑफ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, क्या था एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल? क्या सिर्फ जो हमने गांधी जी, नेहरू और हमने जो है मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, रिवोल्यूशनरीज की बात की, क्या वही स्ट्रगल है क्या हमारा? आखिर आप देखेंगे कैसे? सो यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहते हैं ऑथर साहब कि अफ्रीका में जैसे हुआ, अफ्रीकन एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करने के लिए अफ्रीकन राइटर्स ने लोकल लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिया। जैसे कीनिया ने लिखा कीनियन लैंग्वेज में। सो कीनियन नॉवलिस्ट नगुगी वा थ्योंग ने एक लिखा पेटल्स ऑफ ब्लड, उन्होंने इंग्लिश से कीनियन में लिखना शुरू किया, उससे एक पूरी ज्वालामुखी की तरह सब तरफ हवा फैल गई। सिमिलरली फॉर इंडिया, देयर मस्ट बी ए नीड फॉर सिविलाइजेशनल डिबेट। भारत भी इस एटीट्यूड को समझे कि हिंदी भाषा में एजुकेटर्स का, थिंकर्स का और अनसंग हीरोज का बहुत तगड़ा रोल रहा है। वी कैन नॉट सी एवरीथिंग फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड पर्सपेक्टिव। आवर ऑनरेबल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू क्रिएटेड ग्रेट इंस्टीट्यूशंस, लेकिन अगर हम बात करें कि क्या उन्होंने सिविलाइजेशनल इंडिया को, एंशिएंट इंडिया को, हमारे ग्रास रूट डिस्कोर्स को भी उतनी वैल्यू दी, तो ऑथर डिबेट्स की ऐसा नहीं है।
क्या तिरुवल्लुवर की बात उन्होंने की, क्या तुलसीदास की उन्होंने बात की, क्या उन्होंने कबीर की बात की? ऐसा नहीं है। क्या उन्होंने उपनिषद, वेदास, पुराणास, महाभारत की बात की? ऐसा नहीं है, ऐसा कम है। सो दैट इज वाई आइडियोलॉजिकल कन्वर्सेशन जब हम करते हैं तो उतना ही रोल सुभाष चंद्र बोस और उनकी आर्मी का था, उतना ही रोल 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर और भी लीडर्स का था। जैसे जलियांवाला बाग हो गया, अष्टी हो गया, चिमूर हो गया। आप इनको गूगल कीजिएगा, अष्टी, चिमूर, जलियांवाला बाग, यू विल फाइंड दे हैव प्लेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बाजी राउत इन ओडिशा, तिलेश्वरी बरुआ इन असम, ये भी वो उतने ही इंपॉर्टेंट नाम है जितना मतंगनी हजरा जी का है। सो दे वर ऑल्सो किल्ड बाई द बुलेट्स ऑफ द ब्रिटिश। दैट इज वाई ये रियल इंडिया का बाहर आना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू साहब के अलावा सुभाष चंद्र बोस जी का भी हमारी मॉडर्नाइजेशन में और हमारी फाइट में उतना ही रोल है जितना कि बाकियों का था। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस the article says the number of times demand had been made for the statue of Subhash Chandra Bose, but it was not given due value. So it is the current prime minister who has given the value to decolonization in terms of civilizational ideas. कि भाई हमें कल्चरल डीकोलोनाइजेशन भी करना होगा, हमें अपनी वैल्यूज से इंस्पायर होना होगा, हमें रविंद्रनाथ टैगोर के गोरा से इंस्पायर होना होगा, हमें केसी भट्टाचार्य साहब के स्वराज के आइडिया से इंस्पायर होना होगा, जो कि पीटी में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो द प्रेजेंट गवर्नमेंट determination is to remove the symbols and structures of oppression that is having a unique similarity to the past. So Nehruvian ideas, Marxist ideas are also important, but so is the importance of civilizational ideas and unsung heroes who have been kept little bit aside and shown in a marginal light, whether it is Lokmanya Tilak, whether it is Tagore, whether it is Maharishi Aurobindo Ghosh, Bipin Chandra Pal, and so on. So that is what it wants to convey. Forced labor is a very important theme. All countries who are member of WTO they must comply कि forced labor नहीं होना चाहिए. Forced labor अगर है तो goods को prohibit किया जा सकता है. ये एक element है. ये मेंस के फॉरेन पॉलिसी जब हम फॉरेन ट्रेड गुड्स की बात करते हैं वहां आप कहीं डाल सकते हैं, एसए में कहीं डाल सकते हैं, और आपकी थीम में कहीं ना कहीं होना चाहिए. कैलिफोर्निया इज द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने सोशल मीडिया प्लान्स को जिन्होंने सोशल मीडिया प्लान्स को कंपलसरी किया है फर्म्स के लिए, दैट फर्म्स एंड द corporate sector must come out with their social media plans. So this is the key idea here. When I say or when you say China और इंडिया जिसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, by 2030 we will have majority of electric vehicles, that is टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स होंगे, तो पैसेंजर व्हीकल्स इंडिया में क्यों बढ़ते जाएंगे? तो तीन कारण अगर मैं आपको बताऊं, वी आर पुशिंग फॉर क्लीन मोबिलिटी, सेकेंडली we are pushing, we are increasing the growth in the adoption of electric vehicles, and most importantly जो है demand, it is demand driven area. So with time there are going to be more and more vehicles with the with electricity, or you can say with the renewable energies. In terms of regulators, public sector enterprises must play an important role. Public sector enterprises must be dealt by regulators in the same way like private sector. जब बात आती है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की या वुमेन डायरेक्टर्स की या बाकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स की, तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए. हम बोलते हैं एंटी ट्रस्ट, यूरोपियन यूनियन एंटी ट्रस्ट डिसीजन. प्रीलिम्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है, कि कैसे गूगल अपनी मोनोपोलिस्टिक पावर का यूज करके अब्यूज करता है अपने डोमिनेंस का, इसीलिए उसके ऊपर जो है फाइन लगाया गया है. दैट इज द फर्स्ट डन बाय यूरोपियन यूनियन. जो रूल्स हैं वो रूल बनाए गए हैं ताकि ऐसे जो टेक्निकल जाइंट्स हैं उनकी पावर को कंट्रोल किया जा सके. You can go for reading jumble words, you can solve sudoku also if you feel and if you have time. You can just get fresh by doing that. That is one of the ideas. And finally, Naresh Kumar sir, he is no more. Naresh Kumar sir played important, very important role in grooming our uh, लॉन टेनिस चैंपियंस लाइक लेंडर पेस. और उनका एक बहुत ही फेमस था डायलॉग था, उनका एक फेमस थिंकिंग थी, उनकी एक फेमस व्हाट आई शुड से उनकी लर्निंग थी कि बेस्ट टीचर्स टीच फ्रॉम द हार्ट एंड नॉट फ्रॉम द बुक. इट्स अ वंडरफुल सेइंग. आप अगर
इसको यूज करना चाहें आप एसए में और एथिक्स में यूज कर सकते हैं, और अगर इफ यू आर वेरी calm mind in the longer run you can get it in your head also and practice the same. So thank you very much, keep on watching, sharing, and also making notes and points from the video, and you will have the PDF attached at the description box. Thank you very much.